گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 18 اگست کو ہوں گے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے منظوری دے دی. گلگت بلتستان الیکشن کمیشن جی بی اسمبلی کے 24 حلقوں میں انتخابات کرانے کا ذمہ دار ہوگا. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ 112% اضافہ ہوا. پاکستان میں قیمتیں صرف 25% بڑھیں. ایشیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہیں. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد پاکستان میں اضافہ ناگزیر تھا. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب اور وزیر پیٹرولیم ندیم بابر کی نیوز کانفرنس. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی کراچی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سے ملاقات. سیاسی امور پر تبادلہ خیال. کراچی کے عوام کو فراہمی آب کے منصوبے K4 کے لیے فنڈز مختص کر دیے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. بلوچستان کی ترقی اور عوام کو درپیش مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح. اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت بلوچستان کا قائم خصوصی کمیٹی کا اجلاس. سی پیک منصوبوں کی تکمیل سے بلوچستان میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. 6% کوٹا پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کا اجرا. وزیر اعظم صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اسد قیصر. قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں ڈویژنز اور محکموں سے متعلق 189 مطالبات زر کی منظوری. پاکستان 29 جون سے کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے تیار. فیصلہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر سیاحتیوں کی سہولت کے لیے کیا. بھارت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی شہریوں کی آبادکاری کے خلاف مہم. جو شخص بھارتیوں کو زمین فروخت کرے اسے علاقہ بدر کر دیں. سوشل میڈیا مہم. کئی شہروں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں. قابض فوجیوں کا گھروں میں گھس کر مکینوں پر تشدد. اشیاء کی توڑ پھوڑ. متعدد نوجوان گرفتار. پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ. مزید 3,138 افراد میں وائرس کی تصدیق. متاثرین کی تعداد 1,98,883 ہو گئی. 74 افراد جان کی بازی ہار گئے. مجموعی طور پر 4,035 اموات. 86,906 صحتیاب. وفاقی حکومت کا اہم اقدام. سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. کورونا وبا کی صورتحال کے پیش نظر ہدایات جاری. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی. لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی. 54,14,000 سے زائد صحتیاب. امریکہ میں 1,28,000 سے زائد ہلاکتیں. NDMA کی ٹڈی دل آپریشن کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے بیان کی ترتیب. سندھ حکومت کو گاڑیوں کی خریداری کے لیے کوئی لسٹ نہیں دی. اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا بیان حقیقت کے برعکس ہے. ترجمان NDMA. سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کراچی میں سپرد خاک. نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی کے سینیٹر سراج الحق نے پڑھائی. سیاسی رہنما اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی نماز جنازہ میں شرکت. دورہ انگلینڈ کے لیے 20 قومی کرکٹرز کا اعلان. اظہر علی کپتان, بابر اعظم نائب کپتان ہوں گے. قومی ٹیم آج انگلینڈ روانہ ہوگی. اسکواڈ 14 روزہ قرنطینہ میں رہے گا.
पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड के दौरान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तफसीली खबरों की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 18 अगस्त 2020 को होंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। GB कानून साज असम्बली अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद 24 जून को तहलील हो चुकी है और आम इंतखाबात इस तारीख से 60 दिन के अंदर होना जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन GB असम्बली के 24 हल्कों में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। नाज़रीन, वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में इजाफा और रुपए की कदर में कमी है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब भी कम है। न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि आलमी सतह पर कीमत में इजाफे को मुकम्मल तौर पर अवाम को मुंतकिल नहीं किया गया बल्कि रिलीफ दिया गया है। बैनुल अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है और पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि जिस वक्त कीमतें कम हो रही थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के अहम मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनतकशों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो प्राइस इंक्रीज नहीं दी गई। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि भारत, बांग्लादेश और चीन समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है। 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी 116 रुपये 60 पैसे और डीजल की प्राइस थी 127 रुपये 26 पैसे। 1 जून को जो आखिरी प्राइस रिडक्शन हुई कल वाली अनाउंसमेंट से पहले, पेट्रोल की प्राइस 42 रुपये गिराई जा चुकी थी, डीजल की प्राइस 47 रुपये गिराई जा चुकी थी। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। जो इंक्रीज है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपये इंक्रीज अभी भी 17 रुपये लेसर है फरवरी के मुकाबले में और डीजल में अभी भी 21 रुपये। इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर, चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है, फिलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये है और जापान में 196 रुपये है। वज़ीर तवानाई और मुशीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत का मुकाबला माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोजों से है। उन्होंने कहा कि ऑयल माफियाज और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी से मुलाकात हुई। कराची के अवाम को फराहमी आपके मंसूबे K4 के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की तफसील नौरीन आसिफ से। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, वफाकी वुज़रा असद उमर, मोहम्मद मियां सूमरो और PTI सिंध के रहनुमाओं ने किंगरी हाउस कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA के सरबराह पीर साहब फगाड़ा से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी अमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के हर हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। कराची का K4 का मंसूबा है, उसकी रिपोर्ट कई महीनों से आके सिंध की हुकूमत के पास रखी हुई थी। पानी से तरसा हुआ है कराची, तो हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है सिंध हुकूमत जो है वो वफाक को भेजेगी ताकि उसके ऊपर काम करना शुरू करें।
ہمارے پاس اس PSDP میں جو پہلے سے PC1 جتنا بنا ہوا تھا اس میں جتنی سب سے زیادہ گنجائش ہو سکتی تھی وہ ہم نے پیسہ K4 کے لیے ڈال دیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ گرین لائن منصوبہ کراچی کے عوام کو سفر کی بہتر سہولت فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوگا. یہ گرین لائن کا اپروول ساری ہو گئی ہے, ٹینڈر اس کے ہم نے فلوٹ کر دیے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا کوشش ہماری ہے کہ وہ ایک سال کے اندر وہ یہاں پہ چل جائیں بسیں کسی صورت بھی. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کے ساتھ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے کراچی میں اجلاس ہوا. اجلاس میں نجکاری کے وفاقی وزیر محمد میاں سومرو بھی موجود تھے. اجلاس میں صوبہ سندھ میں وفاق کے تعاون سے جاری منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. کراچی میں متحدہ اپوزیشن کی جانب سے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ بجٹ میں ترقیاتی شعبے کی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا ہے. سندھ کا بجٹ 1.2 ٹریلین یعنی 1222 بلین کا ہو گیا. اگر ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھاتے رہتے تو ہمارے سارے مسائل حل ہوتے رہتے. آپ نے کہا کہ کراچی کے لیے آپ نے بہت کچھ کر دیا. جھوٹ ہے. کراچی کو پانی دو, کراچی کا کچرا صاف کرو, کراچی کو روڈ دو, کراچی کو ٹرانسپورٹ دو. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے GDA کی رہنما نصرت شہر عباسی نے کہا کہ وزیر اعلی سندھ اپنی تقریر میں بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن اراکین کے تحفظات دور کرنے میں ناکام رہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما حسنین مرزا کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ میں پانی موجود ہے, تاہم سیاسی مخالفین کے حلقوں میں کاشت کے لیے پانی فراہم نہیں کیا جا رہا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل کا کہنا تھا کہ بجٹ سے قبل اپوزیشن اراکین کی تجویز لی جاتی ہیں, لیکن سندھ حکومت نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا. نورین آصف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. ناظرین آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی اور صوبے کی عوام کو درپیش مسائل کا حل موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. قومی اسمبلی کی بلوچستان پر قائم خصوصی کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ بلوچستان اور اس کی عوام کو درپیش سماجی اور اقتصادی مسائل کے حل کے لیے پارلیمان بہترین فورم ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت بلوچستان کی عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے اور بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی سمجھتی ہے. اسد قیصر نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا گلگت بلتستان سے شروع ہونا اور بلوچستان میں اختتام پذیر ہونا اس کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے. لہذا اس پارلیمانی کمیٹی کو سی پیک کے حقیقی فوائد کو مقامی لوگوں تک پہنچانے کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وفاقی محکموں میں ملازمتوں میں بلوچستان کے 6% کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کا اجرا بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا عکاس ہے. بلوچستان پر قائم یہ پارلیمانی کمیٹی بھی بلوچستان کی عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جامع سفارشات مرتب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. قومی اسمبلی نے مختلف وزارتوں, ڈویژنز اور محکموں سے متعلق 189 مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت اجلاس میں صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے مطالبات زر ایوان میں پیش کیے. قومی اسمبلی نے صنعتوں اور پیداوار ڈویژن سے متعلق 5, وزارت داخلہ سے متعلق 10, قومی تحفظ, خوراک اور تحقیق کے 4 مطالبات زر, نیشنل ہیلتھ سروسز کے 3 مطالبات زر کی بھی منظوری دی گئی. کٹوتی کی تحریکوں پر بحث سمیٹتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ پاکستان میں گاڑیوں میں حفاظتی فیچرز کا معیار ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اسمبلیز کو مراعات اور سہولیات دی ہیں. آٹو موبائل پالیسی پر آئندہ برس نظر ثانی کی جائے گی. کابینہ نے حال ہی میں بین الاقوامی معیار کے سیفٹی فیچرز متعارف کرانے کی منظوری دی ہے. چھوٹی صنعتوں کے لیے قرضوں میں اضافہ کیا گیا ہے. 30 لاکھ چھوٹے کاروبار کو بجلی کی مراعات دی ہیں. FATF کا معاملہ ورثے میں ملا ہے. ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں. موجودہ ایکشن پلان کو اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا. نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں گزشتہ 2 سالوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے. کٹوتی کی تحریکوں پر بحث سمیٹتے ہوئے قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر فخر امام نے کہا کہ کاشتکاروں کو کھادوں سمیت اور کیڑے مار ادویات کا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے. تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا کہ ٹڈیوں
के चैलेंज से निपटने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। कौमी असम्बली के इजलास में बजट की मंजूरी का अमल जारी है। इजलास 3 की दोपहर 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी वेबिनार से खिताब करते हुए आलमी माहिरीन ने कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी रा जनूबी एशिया में हमसाया ममालिक में हालात खराब करने में मुलव्वस है ताकि भारत इन ममालिक और खित्ते पर अपनी गिरफ्त जमा सके। मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे शाहिद अजमल मलिक। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी वेबिनार से बांग्लादेशी अमरीकन मुहक्किक, मुसन्निफ और मुक्ति बाहिनी के साबिक गोरिल्ला रहनुमा मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन ने भी खिताब किया। ज़ैनुल आबिदीन ने जनूबी एशिया के ममालिक पर जोर दिया कि वो मुश्तरका इत्तेहाद बनाकर भारत के ज़ेर असर और महकूम बनने के अमल को रोकें। उन्होंने कहा कि भारत ने 1947 से जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, सिक्किम, जूनागढ़ और दूसरी रियासतों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू इंतहा पसंद नजरिए के तहत भारत में लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया। 1971 के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने बांग्लादेश को लूटा। बीजेपी की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और 2002 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इजाजत दी गई कि वो गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करे। इट इज माय प्रपोजल अफगानिस्तान, ईरान, Bangladesh, Maldives and Pakistan, we should have an alliance, should create an alliance. We are in the same region. We should not believe, we should not trust India. It will mistake. आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने OIC के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो भारतीय अशिया का बाइकआउट करें और भारत के खिलाफ मुआशी पाबंदियां लगाएं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा अलमिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा तशद्दुद के खिलाफ दिन मना रहा है, मगर भारत सबसे ज्यादा रियासती तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। अमरीकी स्कॉलर इमाम अब्दुल मालिक मुजाहिद ने कहा कि हिंदू इंतहा पसंदी को ताजमहल और गांधी की पुरअमन निशानियों के साए तले नहीं छुपाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के मुसलमान आगे आएं और भारत में रियासती जुल्म का शिकार मुसलमानों की मदद करें। इस मौका पर सऊदी अरब, नाइजीरिया, अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नामवर शख्सियात और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के खालिद रहमान ने भी खिताब किया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिरियत और मजालिम को गैर इंसानी करार दिया। शाहिद अजमल मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला, शुपियां, पुलवामा, इस्लामाबाद, कुलगाम, पूंछ, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी और जम्मू में पुरतशद्दुद ऑपरेशन जारी रखे। इन इलाकों के रहायशियों ने ज़राए अबलाग को बताया कि भारतीय फौजी घरों में दाखिल होकर मकीनों को हिरासा और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ करते हैं। कई नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुर्रियत रहनुमाओं शबीर अहमद डार, उमर आदिल, मोहम्मद इकबाल मीर और गुलाम अहमद ने शुहदा को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने दिया जाएगा और उनके मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए कश्मीरी अवाम पर जोर दिया गया है कि वो मकामी कमेटियों के जरिए इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके इलाकों में एक भी गैर रियासती बाशिंदा रहाइश इख्तियार न करे। जो भी गैर मकामियों को जगह देने या उन्हें अपनी जमीन फरोख्त करने की कोशिश करे उसका माशरती बाइकआउट किया जाए और उस इलाके से बेदखल कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूथ फोरम ने मकबूजा इलाके में शराब की दुकानें खोलने के भारतीय हुकूमत की मज़मूम इक़दाम के खिलाफ श्रीनगर और इस्लामाबाद में मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारत की तरफ से मुतारिफ कराई गई नई मीडिया पॉलिसी को इलाके में प्रेस की आज़ादी पर जालिमाना हमला करार दिया। नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल में अलहदा सेल के लिए दिल्ली की एक अदालत से रुजू किया है। शबीर शाह के वकील एडवोकेट कौसर खान ने दरखास्त में इस्तदा की है कि शबीर अहमद शाह मुख्तलिफ आरसों में मुब्तला हैं, जिसके बायस उन्हें कोरोना से मुतासर होने से खतरा है। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर शाह के रहनुमाओं महमूद अहमद सागर, अब्दुल मजीद मलिक और जाहिद अशरफ ने अपने बयानात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जारी कत्ल गारत की मजम्मत की है। हिंदुत्व एजेंडे पर कारबंद बीजेपी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आला अफसर समेत 25,000 भारतीयों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिए।
पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इस अमल को गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनाफी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि भारत का 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश और मकबूजा कश्मीर के शहरियों को अपनी ही जमीन पर अक़लियत में तब्दील करने के लिए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय हुकूमत का भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आला अफसर नवीन चौधरी समेत हजारों भारतीयों को डोमिसाइल जारी करना मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी कब्जे को तूल देने के मुतरादिफ है और भारत ऐसे ओछे हथकंडों से कश्मीरी अवाम के जज्बे को दबा नहीं सकता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार है। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ये फैसला महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए किया गया है और इस सिलसिले में भारत को आगाह कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि करतारपुर राहदारी अमन और मजहबी हमाहंगी की हकीकी अलामत है। पाकिस्तान के इस इक़दाम को दुनिया भर में सिख बरादरी ने सराहा है। राहदारी को 16 मार्च को कोरोना की वजह से आर्जी तौर पर बंद किया गया था। अब इसको खोलने के लिए जरूरी इक़दाम कर लिए गए हैं और भारत से कहा है कि वो सेहत के रहनुमा उसूलों से मुताल्लिक SOPs के बारे में जरूरी इक़दाम करे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को जुज़वी तौर पर खोलने का खैर मक़दम किया है। ट्विटर पैगाम में बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया ने दोनों मुल्कों के दरमियान सफर को महफूज बनाने के लिए मुसलसल मेहनत की है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए जुज़वी तौर पर फ़ज़ाई हुदूद खोलने के इक़दाम पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपने ट्वीट में रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्त ही साथ देते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में मुआविन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ, सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा को भी टैग किया। कोरोना वायरस की बात करते हैं। पाकिस्तान में मजीद 3138 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में 74 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,98,883 है, जबकि मजमूई तौर पर 4,035 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 72,880 है, सिंध में 76,318, इस्लामाबाद में 12,206, बलूचिस्तान में 10,116 और खैबर पख्तूनख्वा में 24,943। गिलगित बल्तिस्तान में 1,417 और आजाद कश्मीर में 1,003 है। अब तक मुल्क भर में 86,906 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना से मुतालिक वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के फोकल पर्सन खुर्शीद आलम ने ट्विटर पैगाम में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को फंड पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अवाम की तरफ से दिए गए 1 रुपए पर 4 रुपए की हुकूमत की तरफ से कोरोना रिलीफ फंड में जमा होंगे। कोरोना टेस्टिंग, स्मार्ट लॉकडाउन और हिफाजती तदाबीर के हवाले से अहम इजलास NCOC में हुआ, जिसमें टेस्टिंग के मौजूदा तरीकाकार का जायजा लिया गया। 21 जून को टेस्टिंग और गुज़श्ता 24 घंटों की टेस्टिंग का भी मवाजना किया गया। वफाकी वजीर असद उमर ने तमाम सूबों बिलखुसूस फील्ड स्टाफ की दिन रात मेहनत को सराहा और कहा कि वबा को कंट्रोल करने में मसरूफ तिबी अमले की कोशिशों के खातिर खार नताइज सामने आ रहे हैं। असद उमर ने कहा कि हमें हिफाजती तदाबीर, खासतौर पर मास्क और समाजी फासलों पर अमल कराना होगा ताकि वबा पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि सूबों को इजाफी मद, PCR टेस्ट मशीनें या टेस्टिंग किट्स की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। सूबों ने बताया कि लोगों की जानिब से टेस्टिंग की डिमांड में कमी आई है और वो घरों में क्वारंटीना होने को तरजीह दे रहे हैं। अलामात जाहिर होने वालों की तादाद में कुछ कमी आई है। 14 जून से मुल्क भर में 20 शहरों में 542 लॉकडाउन की वजह से नकलो हरकत महदूद है। स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज में लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों के फेडर्स को लोड मैनेजमेंट से मुस्तस्ना करार दिया गया है। पावर डिवीजन की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक कोरोना वबाई सूरत हाल के पेश नजर तमाम डिस्कोज को हिदायत जारी की गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, खाह इन इलाकों में
हाई लॉस फीडर्स की तादाद कितनी ही क्यों न हो। इस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कंट्रोल रूम्स के साथ साथ वफाकी हुकूमत का मरकजी कंट्रोल सेंटर भी मॉनिटरिंग कर रहा है और शिकायत के फौरी इजाले को यकीनी भी बनाया जा रहा है। 2 साल कबल पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम 18,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली तरसील करने के काबिल भी नहीं था, लेकिन अब इसकी तादाद को 26,000 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है और इस वक्त ट्रांसमिशन सिस्टम से औसतन 22,000 मेगावाट से जायद लोड की तरसील कामयाबी के साथ जारी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब के बेशतर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। लाहौर में मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, वॉल सिटी और गार्डन टाउन समेत ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाके सील हैं। सूबाई हुकूमत ने मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन और जनूबी पंजाब के 7 अजला में सेहत घर मंसूबे का आगाज करने की हिदायत की है। तफसीलात ताहिर जाफरी की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर के जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील करने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया रावी टाउन, दातागंज बख्श टाउन और इलामा इकबाल टाउन समेत शहर के तमाम टाउन में ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों को सील करने के साथ साथ शहर भर की मुसलसल मॉनिटरिंग भी कर रही है। कोरोना वबा के पेश नजर जारी करदा SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन और जनूबी पंजाब के 7 अजला में सेहत घर मंसूबे का आगाज करने की हिदायत की है। लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा कि सेहत घर मंसूबे का मकसद दूरअफ्तादा इलाकों में मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करना है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने ईवान को गैर जानिबदार अंदाज में चलाने पर स्पीकर पंजाब असेंबली को खराज तहसीन पेश किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन बजट पेश किया। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि अवामी खिदमत हुकूमत का नस्बुल ऐन है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर अजमल चीमा ने मुलाकात की और अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सरदार महेंद्र पाल सिंह ने मुलाकात की और गैर मुस्लिम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इकदाम करने पर सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि अक़लीतों को तालीम और तरक्की के मुसावी मौके फराहम किए जा रहे हैं। बिलाशुबा पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मौसर इकदाम कर रही है। जरूरत इस अमर की है कि शहरी भी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए तमाम SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, नजर डालते हैं कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। आपको बताते चलें कि दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ से तजावज़ कर गई, जबकि लुक़्मा अजल बनने वालों की तादाद 5 लाख के करीब पहुंच गई है। अब तक 54,14,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि वायरस से मुतासरा 40,86,000 अफराद में से 59,000 की हालत नाजुक है। कोरोना वायरस अमरीका में 25,78,000 अफराद पर हमला आवर हो चुका है, जिनमें से 10,71,000 ने कोरोना को शिकस्त दी। 1,28,000 जान की बाजी हार गए, जबकि 13,72,000 अब भी वायरस का शिकार हैं। अमरीका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में ब्राजील, रूस और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक ऐसे हैं जहां वायरस 1 लाख से ज्यादा लोगों पर हमला आवर हो चुका है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिकल टेस्ट, मरीजों के इलाज और वैक्सीन के लिए अगले 1 साल के दौरान मजमूई तौर पर 31 अरब 30 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी, जिनमें से 13 अरब 70 करोड़ डॉलर तो फौरी तौर पर दरकार हैं। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि कोरोना वायरस के माशी और इक्तिसादी असरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में खुसूसी मंसूबे शामिल किए हैं। बलूचिस्तान कोल माइंस ओनर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि मादनियात का शोबा सूबे का अहम पैदावारी सेक्टर है, जिससे हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है और आमदनी का भी अहम जरिया है। वक्त ने रॉयल्टी फीसों और टैक्सों में इजाफे को 31 दिसंबर तक मौखर करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहबानी ने कहा कि BAP विफाक और सूबे में PTI की इत्तेहादी जमात है और हमारा आपस में बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। तर्जुमान ने कहा कि सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस और टिड्डी दल जैसे चैलेंजेस से एहसन अंदाज में निपट रही है। इस सिलसिले में विफाक NDM में फौज और दूसरे मुतल्लिका इदारों की मावनत हासिल है और तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़कार अली बुखारी ने कहा है कि टाइगर फोर्स कोरोना और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में अपना किरदार अदा करती रहेगी। अटक में टाइगर फोर्स के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी का यह कहना था कि माफियाज इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको एक ऐसा लीडर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया भर में इस कोरोना में अगर सबसे पहला बंदा जिसने आवाज उठाई थी वो इमरान खान था अपने गरीबों के लिए। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो बाहर से इनको वापस लेके आए हैं। इन मुश्किल हालात में हम उनको वापस लेके आए हैं। मुझे दिखाएं कि इंडिया कितने लेके आया है, मुझे दिखाएं कि बाकी मुल्क कितने लेके आए हैं। गरीब हमारे पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में काम कर रहे थे, अपने सारे मुश्किलात के बावजूद, सारे हमारे जो वसाइल नहीं थे, फिर भी उसके बावजूद, जो हर मुल्क में लॉकडाउन था उसके बावजूद 1 लाख पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान वापस आए। तकरीब से खिताब करते हुए माहौलियात के मशीर मलिक अमीन असलम ने कहा कि सियासत को बालाए ताक रखकर अवाम की खिदमत करनी है। कोरोना वबा से बचने के लिए SOPs पर अमल करना होगा। हमारे जो SOPs है, अभी तक हमने कोरोना का मुकाबला अल्लाह के फजल से बाकी तमाम दुनिया के मुमालिक से कहीं बेहतर किया है, लेकिन अभी तक हम इस वबा से बाहर नहीं निकले, इस चैलेंज से बाहर नहीं निकले। इसलिए आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अभी भी वो SOPs फॉलो करवाने हैं ताकि लोग इस चीज को सीरियसली लें। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत और एशियन डेवलपमेंट के ताउन से पंजाब इंटरसिटी इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत सियालकोट वेस्ट कंपनी को 24 डंपर्स फराहम किए गए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और सूबाई वज़ीर चौधरी मोहम्मद अखलाक ने डंपर्स की चाबियां हुक्काम के हवाले की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा कि कंपनी शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए दयानतदारी से खिदमत सर अंजाम दे। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की फराहमी से हुकूमत के नारे बल्दिया मुस्तहकम, पंजाब मुस्तहकम की तकमील मुमकिन होगी। कुछ टिड्डी दल के हवाले से बात करेंगे। NDMA ने टिड्डी दल ऑपरेशन के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से वज़ीर आला सिंध के बयान की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि इस हवाले से सिंध हुकूमत को कोई लिस्ट नहीं दी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अथॉरिटी ने सिंध समेत तमाम सूबों में टिड्डी दल की तलफी के लिए NLCC के ताउन से मतलूबा तादाद में गाड़ियां और दीगर वसाइल मुहैया किए। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध का सूबाई असेंबली में बयान हकीकत के बरअक्स है। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनावर हसन को कराची के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। इससे कबल ईदगाह ग्राउंड नाज़माबाद में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने इमामत की। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, कारकुनों, मरहूम के लवाकीन और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद मुनव्वर हसन गुज़श्ता रोज कराची में इंतकाल कर गए थे। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुत्तहदा उलमा बोर्ड मुल्क में अमन व अमान के क़याम, बैनुल मसालिक हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब मकालमे के लिए किरदार अदा करता रहेगा। इस सिलसिले में तमाम अकादिब फ़िक्र के उलमा, खतीबों, ज़ाकिरीन और वाइज़ीन के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ हर किस्म के फतवेबाजी को रोका जाएगा और किसी भी फर्द या जमात को वतन अजीज में इंतशार पैदा करने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा और इंडेक्स मजमूई तौर पर बुलंद सतह पर रहा। पूरे हफ्ते की कारोबारी सरगर्मियों का जायजा लिया है ज़िशान अहमद खान ने। मुलाहिज़ा कीजिए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 33,794 की सतह पर पहुंचकर 33,737 पर बंद हुआ। इंडेक्स में 298 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान दोबारा देखा गया और इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 34,072 की सतह पर पहुंचकर 34,052 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के तीसरे और चौथे रोज इंडेक्स में कमी हुई और 100 इंडेक्स अपनी बुलंद सतह से कुछ पॉइंट्स नीचे आया। ताहम कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में 229 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वो दोबारा बुलंद सतह पर ट्रेड करते हुए 100 इंडेक्स 34,028 की सतह पर पहुंचकर 33,939 पर बंद हुआ।
मार्केट तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत की बजट में टैक्स में रियायत और मुस्बत पॉलिसियों की वजह से मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी आई है, जबकि लॉकडाउन की सूरत हाल में नरमी के बाद मार्केट पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत ने ये किया कि इंटरेस्ट रेट्स को कम ले आए। जब इंटरेस्ट रेट्स को 7% पे ले आए, इसका मतलब ये है कि तमाम सनतों के अंदर फायदा होगा। तो हुकूमत की जो पॉलिसीज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए थी, उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट में देखा गया। जी हाँ, फर्टिलाइजर की आपने देखा होगा कि कंपनीज में काफी तेजी नजर आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में बेहतरी इस बात का सबूत है कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद बढ़ रहा है। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। 27 जून छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के दिन के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पायदार तरक्की में SME सेक्टर की खिदमत और इस शोबे की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के हवाले से आगाही पैदा करना है। तफसीलात बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों में ऐसे तमाम कारोबार का शुमार होता है जो 1 से लेकर 250 अफराद को रोजगार फराहम करते हैं। पाकिस्तान में 90% जो है वो SMEs है। 80% ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट इज कमिंग फ्रॉम SMEs। और आप अगर एक्सपोर्ट्स को देखें तो कम से कम 25% आर जनरेटेड बाय SMEs। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के फरोग से मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार को तेज करने में मदद मिलेगी। एनवायरमेंट क्रिएट करें कि हम उनको आसान किस्तों पे कर्जे प्रोवाइड करें। जो अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता तो शख्सी जमानत के ऊपर हम उनको पैसे दें। नंबर 2, उनके लिए हमें R&D का इंतजाम करें। उनको हम अगर डायरेक्शन दे दें तो इस कौम में टैलेंट की कमी नहीं है। SME सेक्टर की तरक्की से रोजगार के नए मौके पैदा करने के साथ आवाम का मेयार जिंदगी भी बुलंद होगा। कोरोना वायरस से जहां दुनिया भर में मनफी असरात मुरतब हुए हैं, वहीं सबसे ज्यादा SME का शोबा इस वबा से मुतासर हुआ है। जल्द से जल्द इक़्तिसादी सरगर्मियों की बहाली के लिए इस शोबे की तरजीही बुनियादों पर मदद नागुज़ीर है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अफवाहें जो मजमूई तौर पर इज़्तिराब और नुकसान का बायस बनती हैं, अमन अमान और कौमी यकजहती को मुतासिर और बढ़ती हुई मईशतों को कमज़ोर करने का भी बायस बनती हैं और इनके मोहलिक, मुज़िर और संगीन असरात और नताइज मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अफवाह साजों का मुहासबा होना चाहिए। इसी हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। बहुत बड़ी साजिश है पोल्ट्री और मुल्क के लिए गलत किस्म की अफवाहें फैला के अवाम को बदगुमान करना, ये बहुत बड़े जुर्म में आता है। और मेरे ख्याल में ऐसे जो लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, उनका सद्देबाब करना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। तकरीबन हमारी जो 35 से 40% जो सेल मुतासर हुई थी और लोगों को बड़े लॉस हुए। हमने इन लोगों को खिलाफ साइबर क्राइम में बकायदा कंप्लेंट कर दी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की सख्ती करनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 113वीं मिडशिपमैन और 22वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन पासिंग आउट परेड मुनक़िद हुई। परेड से खिताब करते हुए कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल आसिफ खालिक ने कहा कि पेशा वराना महारत और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल से हम आहंगी वक्त की अहम जरूरत है। पासिंग आउट परेड में 165 कैडेट्स ने पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। मिडशिपमैन अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर मुश्ताक गनी की सदारत में पेशावर में हुआ। इजलास में बजट पर आम बहस का आगाज करते हुए अपोजिशन अरकान ने कहा कि गवर्नर हाउस के अखराजात के बारे में बजट शेड्यूल में कोई जिक्र नहीं। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि महकमा खजाना की जानिब से फंड्स इजरा का मामला काफी हद तक दुरुस्त किया गया है। हुकूमत जारी अखराजात को कम करते हुए तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स बढ़ाएगी। बलोचिस्तान असेंबली ने आइंदा माली साल 2020 और 21 का बजट मंजूर कर लिया। ऐवान ने तकरीबन 452 अरब रुपए के मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान असेंबली में सूबाई वजीर खजाना मीर ज़हूर बलूदी ने 93 मुतालिबात ज़र ऐवान में पेश किए। ऐवान ने अपोजिशन की जानिब से कटौती की तमाम तहरीकें रायशुमारी के बाद मुस्तरद कर दी। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास पीर की सहपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
चेयरमैन मतलूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद ने कहा कि महकमा औकाफ की 1 इंच जमीन भी किसी को नाजायज कब्जा नहीं करने देंगे। ननकाना साहिब में इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक महकमा औकाफ के पट्टादारों से बाकायदा जात की वसूली यकीनी बनाई जा रही है। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर सरदार एजाज अहमद खान जाफर और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पीर तारिक अहमद शाह समेत दीगर ने शिरकत की। महसूद वेलफेयर एसोसिएशन के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। इस मौके पर नौमुंतखब चेयरमैन रहमत खान महसूद और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि हम एसोसिएशन को नई जिद्दत देंगे और सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम पर मरकूज करेंगे और जनूबी वज़ीरिस्तान एजुकेशन कम्प्लेक्स को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। याकूब महसूद, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कमेटी। जो ऑर्गेनाइजेशन माओ इसके बुनियादी मकासद थे उसमें एजुकेशन सबसे अहम शोबा था। बाद में एजुकेशन ही की फील्ड में उन्होंने चंद गरीबों, यतीमों और इस तरह के जो नादार किस्म के बच्चे हैं उनकी मदद के लिए भी बहुत काम किया। पिछले 70 साल से हम पसमानदा हैं। हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो वज़ीरिस्तान एजुकेशन सिटी है, जो उसकी अप्रूवल हो चुकी है। अब हमने उसको एक्सपीडाइट करवाना है। नाज़रीन, पहलवानों के शहर गुजरांवाला को कोरोना फ्री बनाने के लिए शहरियों ने मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम में कोरोना से मुतालिक आगाही के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। शहरियार भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना से मुतालिक आगाही मुहिम में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खसूसी कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर शहरियों को मूजी वबा कोरोना से बचाव के लिए न सिर्फ मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि हमने समाजी फासले को बरकरार रखते हुए एहतियात के साथ कोरोना को हराना है। कोरोना सिर्फ एहतियात से बचा जा सकता है। आप मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, फासले पे रहें और बार बार हाथ धोएं और रश वाली जगह पे जाने से ग्रेज करें। कोरोना से मुतालिक इस मुहिम के दौरान पहले मरले में 5 लाख लोगों तक मास्क और हैंड सैनिटाइजर पहुंचाए जा रहे हैं। मुहिम चलाने वाले शहरी का कहना है कि मरहला वार शहर के हर फर्द तक हिफाजती सामान पहुंचाया जाएगा। हमने 5 लाख मास्क और 1 लाख सैनिटाइजर पूरे गुजरांवाला में तकसीम करने का ऐलान किया है, जो मुख्तलिफ जगह पे कैंप्स लग रहे हैं। गुजरांवाला शहर को कोरोना फ्री बनाने की इस मुहिम में शहरियों के साथ टाइगर फोर्स और सिविल सोसाइटी के अफराद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरांवाला। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सरगोधा की जमीन किन्नू की पैदावार के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है और अब इस जरखेज जमीन पर आमों के बागात भी उगाए जा रहे हैं। देखते हैं सरगोधा से आसिफ हनीफ की ये रिपोर्ट। शहीनों के शहर सरगोधा को किन्नू की पैदावार की वजह से कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। सरगोधा में काश्त किए जाने वाला आला मेयार का किन्नू बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करके करोड़ रुपए का जेर मुबादला कमाया जाता है। किन्नू की पैदावार के बाद अब सरगोधा की जरखेज जमीन पर आम की काश्त की जा रही है। आम जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, अपनी लज्जत और जायके की वजह से सबका महबूब फल है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत शौक से इसे खाते हैं। आम की कसीर इकसाम है, जिनमें लंगड़ा, दुसारी, अनवरटोल, चौसा, सिंदरी वगैरह शामिल है। जनूबी पंजाब के आम मशहूर हैं और अच्छे समझे जाते हैं। इसी तरह सरगोधा में हमने जो बाग तैयार किया है ये भी बहुत पसंद किया जाता है और बहुत लजीज आम है इसका। असा हर साल इत्थां आम का काम ही करेने किन्नू का ही करेने माशाअल्लाह चंगी फसल है। हुण पक गया अंब, हुण असीं पैक करके इनू मंडी दे विच भेजन लगे हैं। एक थैली आम में तकरीबन 60 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। आम में 20 से ज्यादा विटामिन और मादनियात पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, पोटाशियम, फोलेट, विटामिन बी की एक किस्म बड़ी मकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें रेशा भी पाया जाता है। उम्मीद है कि सरगोधा किन्नू के बाद अब आम की पैदावार में भी अपना नाम पैदा करेगा। आसिफ हनीफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सरगोधा। और यहाँ आपको बताएंगे कि चीन के मुख्तलिफ सूबों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। चीन के जनूबी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। लोगों के घर और इमारतें पानी में डूब गईं। हुकाम के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद तूफानी बारिशों से मुतासिर हुए हैं। दरियाओं में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम ओकाड़ा, भक्कर, नूरपुर थल, तोबा टेक्सिंग, डीआई खान और मालम जब्बा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अस्सलामुअलैकुम, खेलों खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे इंग्लैंड के लिए 20 कौमी क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया है। ऐलान किए गए खिलाड़ियों में अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान, नसीम शाह, रुहेल नजीर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शनवारी और यासिर शाह शामिल हैं। जफर गोहर इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। उन्हें सिर्फ प्री मैच तैयारियों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। कौमी स्क्वाड को अगस्त सितंबर में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। दौरा इंग्लैंड के लिए कोरोना टेस्टिंग के पहले मरहले में जिन 10 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आए थे, रीटेस्टिंग में उनमें से 6 खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए हैं। जिन खिलाड़ियों के टेस्ट अब मनफी आए हैं उनमें फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल हैं। पीसीबी के मुताबिक पहले मरहले में स्क्वाड में शामिल जिन अराकीन के टेस्ट मुस्बत आए थे उन्हें इंग्लैंड रवानगी के लिए 2 मनफी टेस्ट देने होंगे। हैदर अली, हारिस रऊफ, काशिफ भट्टी और इमरान खान के रीटेस्ट में भी टेस्ट मुस्बत आए हैं। उन्हें फौरी तौर पर सख्त करंटीना में जाने की हिदायत कर दी गई है। कोविड-19 टेस्टिंग के पहले मरहले में 18 खिलाड़ियों और 11 रुकनी स्पोर्ट्स स्टाफ के टेस्ट मनफी आए थे। उन सब की रीटेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आई है। 4 रिजर्व खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट बुध को हुए थे। इनमें से इमरान भट्ट का टेस्ट मुस्बत, जबकि बिलाल आसिफ, मोहम्मद नवाज और मूसा खान के टेस्ट मनफी आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि एक चैलेंजिंग और गैर मामूली अमल के बाद 20 खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के 11 अरकान मैनचेस्टर रवानगी के लिए दस्तयाब हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वसीम खान ने कहा कि मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज ने पीसीबी की दूसरी टेस्टिंग से कबल जाती तौर पर अपनी टेस्टिंग करवाई और इसके बावजूद उनके टेस्ट मनफी हैं। ताहम पीसीबी टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत उनका एक मुस्बत और एक मनफी टेस्ट आया है। इंग्लैंड रवानगी के लिए इंतजाम से कबल दोनों खिलाड़ियों को पीसीबी टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत मजीद एक मरतबा मनफी टेस्ट देना होगा। वसीम खान ने कहा कि जिन खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं पीसीबी उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगा। जैसे ही उन खिलाड़ियों के टेस्ट के नताइज 2 मरतबा मनफी आएंगे वो इंग्लैंड में दोबारा स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। दौरा इंग्लैंड से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बायो सिक्योर माहौल फराहम कर दिया गया है। होटल में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स इंडोर गेम्स खेलने में मसरूफ हैं। कप्तान कौमी व्हाइट बॉल टीम बाबर आजम और इमाम उल हक ने बैडमिंटन में मुकाबला किया और खेल से लुत्फांदोज हुए। खिलाड़ियों ने होटल के हाल में मेज रखकर बैडमिंटन खेली और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। कप्तान कौमी टेस्ट टीम अजहर अली और टेस्ट ओपनर शान मसूद के दरमियान प्ले स्टेशन गेम्स में मुकाबला हुआ। वर्चुअल फुटबॉल मुकाबले में दोनों खिलाड़ी गोल करने की भरपूर कोशिश करते दिखाई दिए। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने साल 2020 के डेविस कप के तमाम मुकाबले मुलतवी कर दिए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से डेविस कप के रवां साल सितंबर में होने वाले मुकाबले मुलतवी किए गए, जिसमें ग्रुप 1 में पाकिस्तान और जापान के दरमियान इस्लामाबाद में 18 और 19 सितंबर को होने वाला मुकाबला भी शामिल है। पाकिस्तान ने सिल्वेनिया को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इंतजामिया के मुताबिक इवेंट के फाइनल्स मुकाबले 2021 तक मुलतवी किए गए हैं और इसका अगला एडिशन अब नवंबर 2021 में खेला जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सिविला और रियल वलाडोलिड के दरमियान खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। खेल के 25वें मिनट में मेहमान टीम वलाडोलिड ने गोल करके बढ़ती हासिल की, जो कि मैच के इख्तिताम से 7 मिनट कबल तक बरकरार रही। ताहम 83वें मिनट में वलाडोलिड के जावी सांचेज ने के हैंडबॉल की वजह से सिविला को पेनल्टी किक मिली, जिस पर लुकस ने कामयाबी से गोल करके अपनी टीम को यकीनी शिकस्त से बचाते हुए कीमती पॉइंट दिलाया। पुर्तगाल प्रीमियर लीग में स्पोर्टिंग ब्रागा ने विटोरिया को, जबकि स्पोर्टिंग सीबी ने
बेलेनेंसिस को शिकस्त दी। ब्रागा में खेले गए मैच में मेजबान स्पोर्टिंग ब्रागा ने विटोरिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। खेल के पहले मिनट में ही पाल्हिनो ने गोल करके ब्रागा को बढ़तरी दिलाई, तहम 15वें मिनट में विटोरिया के आंद्रे ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। 35वें मिनट में ब्रोनो ने गोल करके विटोरिया को सबकत दिलाई, जिसे 7 मिनट बाद ब्रागा के फ्रांसिस्को ने खत्म किया। 63वें मिनट में बेनिसन ने गोल करके स्पोर्टिंग ब्रागा को कामयाबी से हमकिनार किया। लिस्बन में खेले गए मैच में मेजबान बेलेनेंसिस को नाकामी का सामना करना पड़ा। स्पोर्टिंग सीपी ने बेलेनेंसिस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मैच के 4 गोल पहले हाफ में किए गए। स्पोर्टिंग सीपी की जानिब से जोबियन कैब्राल ने 2 गोल किए। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेनस। शुक्रिया अनीस। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन और सदफ अली खान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए PTV न्यूज। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतिया जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूझबूझ। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। अगर वो जिंदा है आएंगे तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है अफजल बादशाह, कबीले में है, महल की राहदारियों में और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट स्मार्ट वर्ल्ड। सिर्फ PTV न्यूज पर।
दर्दनाक खबरों से परेशान हैं, क्या सनसनी अब अजियत बन चुकी, क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। परियों कलियों की आबादी, जन्नत है कश्मीर की वादी। इस वादी के तूलो अर्ज में सब्ज चरागाहों की खुशबू लहराती है। फूलों और रंगों की आहट मीलों दूर से सुन जाती है। इसकी एक झलक ही वो रूह को महकाती है। यहाँ तो शब भर मियां मोहम्मद बख्श के दिल पर शेर चमकते हैं, दीवाने जुगनू बनकर। सैफ मलूक हर दिल में जाके खुशबू बनकर। झीलें इस मोनी वादी की सब्ज आंखें हैं, नीलम जेलम और चनाब के बहते दरिया रगे हैं इसकी। झरने इसकी आवाजें हैं, सुर वाले जिनको सुनते हैं गुर वाले भी सर ढूंढते हैं। इन दरियाओं के अलबेले माये टप्पे ऐसे मीठे जैसे फूले गालों वाले दो बच्चे कश्मीरी बोले, हुस्न के बंद रीचे खोले। बर्फ की शालें ओढ़े पीर पंजाल की वादी, जिसकी तेज हवाओं में मचले आजादी, जिसके झरने नज़में और गजलें कहते हैं और हिना की खुशबू लहराते रहते हैं। खुशबू के हलकोरे लेते गर्मा गर्म और खस्ता ये कश्मीरी कुलचे, ताजा साग और मक्की की रोटी के खुशबूदार निवाले बचपन के यारों की सूरत दिल में यूं घर कर जाते हैं, धड़कन धड़कन लहराते हैं। जाड़े और बर्फीले मौसम से कुछ पहले बकर वालों के कुछ कुनबे अपनी भेड़ों के झुरमट में चलते चलते बांसुरिया की मीठी ताने लहराते हैं। सर्फ चनारों की ये धरती, मस्त नजारों की ये धरती, शाह बलूद की इस वादी पे शायर ने क्या खूब कहा था, खाक के इस कुर्रे पर जन्नत अगर कहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। यारो, ये वादी जन्नत है और जन्नत तो हर अहले ईमान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।